Hello friends, I am Ajit Agarwal and in this class of physics, I will explain you few previous year question based on ray optics and these may be quite important for your board exams. This is the very first question of this class. A thin convex lens of radius of curvature r made of material of refractive index mu1 is kept coax in contact with equiconvex lens of same radius of curvature and refractiveness mu2. Find the ratio of their parts and power of the combination. तो इसमें गिवन क्या है? तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस mu1 and in contact to it there is a concave lens of same radius of curvature but of refractive index mu2. तो हमें फाइंड करना है इन दोनों की पार का रेशियो. पार तो तब निकलती जब हमें फोकल लेंथ पता हो क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पार ऑफ लेंस होता है. तो अगर हम इन लेंसेज के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करें जो कि फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है मीन्स कि रेडियस सेम है दोनों साइड पर रिफ्रैक्टिवनेस हमको यहाँ म्यू की जगह अप्लाई करना पड़ेगा mu1 -1. First radius of curvature for convex lens is on right side, therefore you will take it as positive sign. But second surface, the radius of second surface is along left side, so you will take with negative r. Now you will have mu minus 1, mu1 minus 1 multiplied by, if you solve it by taking LCM, so you will get 2/r. This is 1/focal length for first lens, and 1/focal length you can write it as power of convex lens. Similarly, you can calculate the power for second, yani means concave lens that is kept in contact. तो concave lens की ये पार आती है P2 equals to mu2 minus mu1 1/, फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस होगी -r क्योंकि ये लेफ्ट साइड होगा -1/r. So you will get the value of power for concave lens with negative sign. So now you can do the first part by taking the ratio of P1 and P2. What result you will get? This will be the final answer with negative sign mu1 minus 1 upon mu2 minus 1 because 2/r will cancel out. This is the answer for first part. Now for second, you have to calculate the power of the combination and its nature. Power means total power. So what will you do in this part? Simply you will add P1 and P2. You can see here that 2/r will taken out common. 2/r will taken out common. What will left? In P1, mu1 minus 1 and in P2 with negative sign mu2 minus 1. Now, what will left behind? Mu1 minus mu2. But in the question it is given that mu2 is more than mu1. So means you will get the total power of lens with negative sign. Means the lens combination will behave as a concave lens. Concave lens whose power is this much 2/r time mu1 minus mu2.
This is the complete solution for this question. This question was there in 2022 CBSE Set 1. In question 2, you are asked to derive a relation for angular deviation in case of prism. What is the question? Trace the path of ray of light PQ which is incident at an angle I on one face of glass prism of angle A. It then emerges out from other face at an angle E. Use a ray diagram to prove that angle through which ray is deviated is given by. So, angle through which ray is deviated means you have to calculate angular deviation, which should be angle I plus angle of emergence minus angle of prism. So how we will start it? First, we will draw its ray diagram. So this is the cross-sectional part of prism ABC. Here two normals N1 and N2 to the surface AB and AC. Suppose these two are meeting at some other point, say M. A light ray is made incident on the first surface here, for which angle of incidence is I. Now strike to other surface and finally emerge out. Bends I for normal क्योंकि लाइट ग्लास से एयर में निकलेगी. So angle of emergence is E. Inside you can take angular refraction R at first surface and R dash at second. How will you represent angular deviation? If you extend incident ray in forward direction and emergent ray in backward direction, you can see how emergent ray get deviated. So this angle is delta. This is angle of deviation. तो ये प्रूफ की तरीके से है. तो इसको आप डायग्राम बनाएंगे और फिर हम लोग इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे. तो here you can see, suppose this point is O. तो O, here I am taking the point whole path. I am taking P, Q, R and finally S. If this angle is I, then this whole angle will I. वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसमें से हम आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनसाइड ये जो एंगल होगा जो आई माइनस आर. सिमिलरली ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर दिस विल बी ई माइनस आर डैश. तो अब यहाँ पर हम ले सकते हैं ये ट्राइंगल ओ क्यू आर. अगर हम ट्राइंगल ओ क्यू आर लें तो इसमें हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के हम डेल्टा निकाल सकते हैं. तो एक्सटीरियर एंगल डेल्टा विल बी सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर. तो फर्स्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल इज आई माइनस आर and other one is E minus R dash. If you arrange them, then it will be I plus E, negative common, R plus R dash. This is delta. Now, I am taking this as equation number 1. Now take the quadrilateral A, Q, M, R. I am taking quadrilateral A, Q, M and R, जिनमें एंगल ए क्यू एम नॉर्मली है, ए आर एम ये भी 90 डिग्री है. तो इन दो एंगल का सम तो हो गया 180. इसका मतलब है एंगल ए और एंगल एम का सम भी 180 होना चाहिए क्योंकि फोर एंगल्स का टोटल 360 डिग्री होता है. तो इसका मतलब अगर दो एंगल का सम 180 है तो रेस्ट टू एंगल सम 180 होगा. So here you can calculate angle M in terms of angular reflection A.
sorry, or not angle of refraction, refracting angle. Angle of prism is also known as refracting angle. क्वेश्चन नंबर 2. तो अभी तो हमारी ये इनकम्प्लीट है, तो अब ऐसा करते हैं कि हम लोग अब नीचे का ट्राइंगल लेते हैं क्यू आर एम. ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है. फ्रॉम ट्राइंगल क्यू आर एम द सम ऑफ थ्री एंगल्स is 180. Three angles are R, R dash, and then a third angle is angle M. The sum of all these three angles should be 180 degree. Then what is angle M? Angle M will be 180 minus R plus R dash. Okay. तो अब हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों से हमको मिल गया एंगल M. दोनों को एंगल M को इक्वेट कर देंगे और हमें मिलेगा रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3. 180 minus A is equals to 180 minus R plus R dash. 180 will cancel out and you will get the result. Angle of prism is R plus R dash. Question number 4. तो अगर इस क्वेश्चन नंबर 4 की इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, then you will get the final result that the question needs. What question needs? कि you have to calculate delta. तो हम डेल्टा रखेंगे और इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई और माइनस इन प्लेस ऑफ आर प्लस आर डैश यू कैन सब्स्टिट्यूट एंगल ए. So this was the final result. Put angle size with it. So this is first solution. And in second part, what is asked? What will be the minimum value of delta if light ray passes symmetrically through the prism? Symmetrically means यहाँ कोई deviation ना हो, तो ये कब ऐसा हो सकता है? The light ray will not be deviated if light ray falls normally. Normal direction जाएगी, light यहाँ से straight चली जाएगी और without deviation move करेगी. तो इसका मतलब भाई इस वाले पार्ट का आंसर होगा the angle should be, the light ray should incident at an angle of 90 degree. ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर. In this question, it is asked that a point source in air is kept 24 centimeter in front of concave spherical glass, of whose refractive index is 1.5 and radius of curvature 60. Find nature of image form and its distance from point source. तो हम लोग से क्या कहा गया है कि एक कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए. डेरिवेशन इसी डेरिवेशन से ही फिर लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन भी होता है. So I am drawing this diagram only for the position shown. All distances measured from this pole of the surface P. जितनी भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड होंगी सब नेगेटिव साइन के साथ एज्यूम की जाती हैं और जितनी डिस्टेंस सब लाइट की डायरेक्शन में होंगे टुवर्ड्स राइट साइड वो सब पॉजिटिव लेंगे. तो हम देख सकते हैं कि इस पोल के रेस्पेक्ट में अगर सेंटर कर्वेचर भी लेंगे यानी रेडियस कर्वेचर लेना पड़ा तो नेगेटिव साइन मिल जाएगा. एंड व्हाट इज गिवन, ये दे रखा है इन्होंने कि एक पॉइंट सोर्स है जो कि 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है. सो ओ इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट whose distance from pole is 24 centimeter. तो फर्स्ट यू विल मेक द डेटा जरूर बनाइए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में, तो इससे फॉर्मूला भी याद हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स में. तो यहाँ देख सकते हैं कि जो पॉइंट सोर्स की पोजीशन है वो 24 सेंटीमीटर है, लेफ्ट साइड से नेगेटिव साइड मिल जाएगा. The refractive index is given, that is a mu g 1.5. लाइट रे क्योंकि एयर से ग्लास में एंटर करेगी इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ही निकाला जाएगा, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे. रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 दी गई है जो कि इसके लेफ्ट साइड में होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया जाएगा विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव 60 सेंटीमीटर.
And finally, you have to calculate the position of image and distance between object and image. So we will apply the formula n upon v minus 1 upon u equals n minus 1 upon r. Here n is refractive index of glass with respect to air. So this is 1.5. You have to calculate v. You will not put the sign of v. ये अपने आप ही कैलकुलेट होने पर आएगा. u की जगह हम पुट कर देंगे -24 सेंटीमीटर इक्वल्स 1.5 माइनस 1 और r भी लिया जाएगा नेगेटिव साइन में क्योंकि रेडियस लेफ्ट साइड है. Here r is 60 centimeter, so we will take it with negative sign. Now solve it. By solving you can calculate v. तो इस तरह से हम सॉल्व करके हम रिजल्ट आ सकते हैं -1/20 and this is equals to previously left over 1.5/v. So on doing cross multiplication we can get the result that is 30 centimeter with negative sign. So negative sign shows that image will form on the left side but at 30 सेंटीमीटर. स्टार्टिंग तो ऑब्जेक्ट रखी थी 24 सेंटीमीटर पर लेकिन इमेज बने 30 सेंटीमीटर पर. तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, जो कि सेकंड पार्ट इसका है, इट विल बी 6 सेंटीमीटर. डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी 6 सेंटीमीटर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आने के चांस होते हैं रे ऑप्टिक्स में कम से कम. This is another important question based on total internal reflection. Explain with the help of suitable diagram the phenomena on which optical fiber works. Mention two use of optical fiber. तो optical fiber basically इस तरह की लॉन्ग ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है जो बहुत ही फाइन होती है. This is inner surface and here is outer cladding. ये क्लैडिंग प्रिवेंट करता है एनर्जी लॉस से. लाइक दिस मच इस तरह से बना सकते हैं या इसको यहाँ पर हम कुछ क्रॉस सेक्शनल पार्ट शो कर सकते हैं लाइक सर्कल टाइप में. तो लाइट रे इज अलाउड टू पास इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड मोर देन क्रिटिकल एंगल. So light ray strike to this surface, inner surface, in this direction at an angle more than critical angle, then यहाँ से फिर light ray reflect कर जाएगी. And again when light ray strike to this surface, total internal reflection takes place. Again strike to this much, then here without energy loss, again it will reflect, again reflect, and finally comes out. So in this process there is very little loss of energy. Then what is this phenomena? This is known as total internal reflection. On this basis, this phenomena works. So name mention two uses of optical fiber. So mainly it is used in medical science. In medical science, this technique is used to see internal organ. That method is called endoscopy. And other use is in communication. इन कम्युनिकेशन. तो ये हम लोग को इतनी चीज चाहिए होंगी तो हमें 3 नंबर पूरे पे मिल जाएंगे. क्या डायग्राम शो करनी है, कौन सा फिनोमेना है उसको स्टेट करना है और मेडिकल साइंस और कम्युनिकेशन का यूज. This question is also taken from previous year and what is given in this question? Find the two possible position of an object. Means you find करना है kept in front of lens of power 5D. 5D is given means कि it is convex lens. पॉजिटिव साइन लेंगे. So that image form in both cases is 4 times magnified. तो दो केसेस कौन सी हो सकती हैं? हमें ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखनी है कि हमें दो इमेजेस मिले लेकिन 4 टाइम लार्ज है. तो इसका मतलब वो एक रियल हो सकती है और एक वर्चुअल हो सकती है.
तो पहले हम लेंगे एक रियल इमेज के लिए और फिर वर्चुअल इमेज के लिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v अपॉन u होता है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम रियल इमेज लेते हैं 4 टाइम मैग्नीफाइड, तो ये हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव साइन के साथ। सॉरी पॉजिटिव ना दिया, यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा, -4 v upon u, then you will take v equals -4u, और इसको फिर हम लेंस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u में। ये नोन है। फोकल लेंथ जो दी गई है, यहाँ पर तो पार दी गई थी 5d, तो पार इज 1/, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज 1/, पार। तो मीन्स इन शॉर्ट इसका जो आंसर आएगा, हम इसको पार ले सकते हैं, दैट इज 5d। ये डायप्टर में है, मीन्स SI यूनिट इसकी होगी मीटर में। v की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर -4u और माइनस का 1/u। इसको सॉल्व करके हम u की पहली वैल्यू निकाल सकते हैं जो मीटर में आएगी। सुटेबल यूनिट के हिसाब से इसको आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड केस हम ये लेंगे कि अगर हम एज्यूम कर लें कि ये वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, जिसकी वजह से इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ मैग्निफिकेशन लेते हैं। तो हमें यहाँ +4 पुट करना होगा इक्वल टू v अपॉन u। बाकी सभी सेम वर्किंग है। फिर से हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और u की दूसरी वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह हम दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिए, तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन भेज दूंगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रिज्म। इस प्रिज्म में लिखा है फॉर गिवन फॉर ग्लास प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन म्यू इज √3। अगेन मेजर डेटा, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा is equal to angle of prism. Delta is equals to angle of prism, that is A. Find the angle of prism. तो हमें इस पहले पार्ट में निकालना है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कम डायरेक्टली टू फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर प्रिज्म, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा m अपॉन 2 होल अपॉन साइन a अपॉन 2। Now substitute the values. Refractive index is √3. Because these two angles are same, so you will put a plus a is 2a, 2a upon 2 is simply a. You will have sin a upon sin a by 2. Now you can write sin a as 2 sin a by 2 cos a by 2 or upon sin a by 2. So here you can see sin a by 2 will cancel out. Shift 2 on left side, you will have √3 by 2 equals cos a by 2. अब इन्होंने इधर cos फंक्शन है तो √3 by 2 को कोसाइन फंक्शन में ही लिखेंगे। तो cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है √3 by 2? cos 30। तो you can equate angles, a upon 2 is 30 degree and a is 60 degree. This will be the answer for first part. In its second part, it was asked that how will angle delta be affected if prism were immersed in water. तो अगर हम ग्लास प्रिज्म को वाटर में इमर्स करते हैं तो इसका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो वो कम हो जाता है, जिससे मिनिमम डेविएशन एंगल भी रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर ये गिवन है कि अगर ये कॉनकेव लेंस है और इसको वर्टिकली कट कर दी जाए,
तो ये बन जाएगा एक प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो हाफ कट करने पर जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो डबल जाती है। तो इसका मतलब है कि ये नोन है पावर इज 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो डबल होगी इसकी इस फर्स्ट ओरिजिनल कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम एफ जगह 12 फुट कर देंगे तो पार पहले की हाफ हो जाएगी। तो इट मीन्स इसका सेकंड आंसर ये होगा कि पार विल बी हाफ अगर हम प्लेनो कॉनकेव लेंस को प्लेनो कॉनकेव लेंस की पार निकालते हैं तो, क्योंकि ओरिजिनली इसकी होगी पी और अब फाइनली हो जाएगी p/2। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is taken from optical instruments. An optical instrument uses lens of par 100D for objective and 50D for eyepiece. When tube length is kept 25 centimeter for the final image forms an infinity, identify the optical instrument. ये नोन है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो जब भी ऑब्जेक्टिव लेंस लार्जर फोकल लेंथ का होता है, जब भी ऑप्टिकल लेंस लार्जर फोकल लेंथ का होता है और आईपीस स्मॉलर फोकल लेंथ का होता है तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लेकिन हम यहाँ अगर देखें तो पार लार्जर, इसका मतलब फोकल लेंथ स्मॉलर है। तो अगर फोकल लेंथ कम ऑब्जेक्टिव लेसर फोकल लेंथ की है लेकिन आईपीस लार्जर फोकल लेंथ का है तो इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मीन्स दिस अप्लायंस विल बी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें गलती ना करिए कि कंफ्यूज है कि पार लार्जर देख के उसको हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कह दिया। अगर पार लार्जर है तो फोकल लेंथ स्मॉलर होगी। और इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बन रही हो तो फॉर्मूला होता है इसका माइनस का V0 अपॉन U0 D अपॉन FE। FE इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो कि हम यहाँ 50D से निकाल सकते हैं। तो FE विल बी 1/50। I am giving you the hint for these questions. D is 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे यहाँ पर FE जो 1/50 आएगा ये मीटर में होगा और अगर इसको हमें सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो 1/50 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो आंसर विल बी 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 2 सेंटीमीटर पुट करें ना कि 50 1/50। D 25 सेंटीमीटर होगा। V0 और U0 ये हम कैलकुलेट करेंगे इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ की हेल्प से। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव? FO इज 1/100 इन मीटर। तो अगर इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 1 सेंटीमीटर। So now FO is known. FO is known and what is known? Tube length. What is tube length in case when a final image forms an infinity? इनके बीच की टोटल डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच के टोटल डिस्टेंस। पहली इमेज जो बनती है वो बनती है V0 पोजीशन पर और फाइनल इमेज इन्फिनिटी तब बनती है जब ये गैप FE के बराबर हो। ओवरऑल हम लोग को क्या गिवन है? V0 प्लस FE। V0 प्लस FE इज 25 सेंटीमीटर and FE is given, that is 2. So V0 is 25 minus 2, that is 23 centimeter. Now you are asked, you are given V0 is known, F0 is known, then by using these two and apply lens formula for objective 1/F0 is 1/V0 minus 1/U0. You can calculate first U0 and then substitute all these values in this formula. V0 is given, ट्यूब लेंस निकला था, U0 लेंस फॉर्मूले से D25 और FE 2 सेंटीमीटर। इन सबको पुट करके हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉनकेव लेंस। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा गया तो इसका मतलब है R1 और R2। इक्वी कॉनकेव का मतलब दोनों की रेडियस सेम होगी, जिसमें R1 लिया जाता है नेगेटिव साइन के साथ और R2 लिया जाता है पॉजिटिव साइन के साथ। और यहाँ पर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन व्हेन इट इज केप्ट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4।
टू हैव पावर ऑफ -5d। ये नोन है एक लेंस मेकर फॉर्मूले में 1/f का एक्सप्रेशन होता है जो कि खुद एक पावर है। तो पावर को हम यहाँ लिख देंगे -5। refractive index of glass with respect to medium is a mu g upon refractive index of medium, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, ग्लास के रिफ्रैक्टिव ऊपर लिखेंगे, divided by refractive index of medium, that is 1.4 minus 1 upon r1. In place of r1 you will place minus r, and in place of r2 you will put simply r. This whole solution will be minus का 2 upon r. Here you will do arithmetically. 1.4 will be LCM. 1.5 minus 1.4 is 0.1, and here is minus 2 upon r. So by this expression you can solve this now. So please solve it. And now I am coming to next question. Again, this numerical is related to prism. An equilateral glass prism has refractive index 1.6 is placed in air. Calculate the angle of minimum deviation of prism when kept in medium of refractive index 4√2/5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तो हम लोग इस का जानते ही हैं प्रिज्म के लिए, म्यू इक्वल्स टू, अभी हमने यूज भी किया था ये, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होल अपॉन साइन ए बाई 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यहाँ पर किसका निकाला है, क्योंकि इसको किसी मीडियम में रखा हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम पुट करना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहाँ पर 1.6 divided by refractive index of given medium, it is 4√2/5। तो 5 चला जाएगा न्यूमरेटर साइड में, और क्योंकि यहाँ पर इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म दिया हुआ है तो इसका मतलब है जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो 60 डिग्री का है। ए इज 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन it will be sin 60 by 2. Sin 60 by 2 is sin 30. I am writing directly sin 30, and value of sin 30 is half. You can shift this half on left side. So here this will be 8 upon 4√2. You will shift half here in multiplied sign. 4 to the 8 will cancel out, leaving behind only 1 upon √2. Leftover things are sin 60 plus delta m whole upon 2. Here 1 upon √2 is left, so this 1 upon √2 is sin 45 equals sin 60 plus delta m whole upon 2. Now sin will cancel out. Equate the angles. 45 degree equals 60 plus delta m by 2. On solving, this will be 30 degree. So basically numerical will come along with few derivations. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। इसमें 3 लेंस दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, एक 10 सेंटीमीटर प्लस का, एक -10 सेंटीमीटर कॉनकेव और 30 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स। 3 lenses of focal length are given arranged coaxially. Find position of final image form. तो देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट और रखी हुई है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट लेंस। तो हम जब एक वन टाइम में हम एक ही लेंस यूज करेंगे। पहले यूज करेंगे फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स का, जिसमें यू रखेंगे हम लोग -30 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट लेंस के लिए जो यू होगा -30, फोकल लेंथ होगी 10, तो इससे करस्पॉन्डिंग वी निकाल लेंगे। इसी करस्पॉन्डिंग वी निकालेंगे हम लोग वो लेंस फॉर्मूले से। तो फॉर फर्स्ट लेंस 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f. Substitute all these values. V you have to calculate. For first lens u is -30 equals 1 upon focal length.
तो इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी, +10, shift -1/30 on other side, you will have result 1/10 minus 1/30. On solving, your answer will be, what your answer, इसको सॉल्व करना पाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइन। तो ये नोन है कि फर्स्ट लेंस के करस्पॉन्डिंग 15 सेंटीमीटर पर पहली इमेज बनेगी। तो अगर हम इसका ऑप्टिकल सेंटर इसको अज्यूम करते हैं तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर तो इन्होंने एक गैप दिया है, इसका मतलब ये हुआ 10 सेंटीमीटर और यानी यहाँ पर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर पर होगा, यानी कुल मिलाकर टोटल 15 सेंटीमीटर थर्ड लेंस से डिस्टेंस है, तो यानी इमेज यहाँ बननी चाहिए इसकी ऑप्टिकल सेंटर पर, ठीक है। तो अब हम सेकंड लेंस का यूज करें, तो सेकंड लेंस से करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो ये जो पहली इमेज बनेगी, फर्स्ट इमेज जो बनेगी I1, वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी इस लेंस के लिए ये बन गया ऑब्जेक्ट। कितनी डिस्टेंस है ये, 10 सेंटीमीटर की। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फिर सेकंड लेंस के लिए, फॉर सेकंड लेंस फोकल लेंथ लेंगे -10, तो 1/-10 equals 1/v. You have to calculate this v. I am assuming it as v dash minus 1/u. u कितना होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट राइट साइड में है तो उसको +10 ही रखेंगे। इस हिसाब से इसका जो v डैश आएगा वो सॉल्व करने पर कैंसिल, इधर पूरा कट जाएगा ना, ये -1/10 तो प्लस बन जाएगा, तो ये आएगा इन्फिनिटी। तो v डैश इज इन्फिनिटी, यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई I1 पोजीशन पर तो इससे करस्पॉन्डिंग इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी बनेगी, यानी थर्ड लेंस के लिए वो लाइट रे जो इन्फिनिटी से आ रही होगी तो इमेज कहाँ बननी चाहिए। अगर मान ली लाइट रे हम कहते हैं इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी से इमेज बनती है फोकस पर, तो ये फोकस बनेगी। और क्योंकि फोकस दिया 30 सेंटीमीटर का, तो जो लास्ट इमेज बनेगी वी वो होगी 30 सेंटीमीटर पर। अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, फिर समझ लें। पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जिसकी पहली इमेज बनी थी 15 सेंटीमीटर राइट साइड। सेकंड लेंस के लिए ये डिस्टेंस बचेगी अब 10 सेंटीमीटर की जिसके लिए इमेज आई थी इन्फिनिटी, फिर पोजीशन आई थी इन्फिनिटी। तो अब ऑब्वियस है कि थर्ड लेंस के लिए वो वर्चुअल इमेज जो बनी है, जो इमेज बनी है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी, तो इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज बन जाएगी फोकस पर। अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? If you have any problem, you can ask me by mean of comment box. This again an important question. Convex lens is placed in contact with plane mirror. तो जब हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दिया है तो इसमें प्लेन मिरर दिया हुआ है। A convex lens is placed in contact with plane mirror. And here is convex lens. All the diagram you will make by mean of pencil. This is set up according to first line. A point object is placed at a distance 20 centimeter from this combination. एक point object रखा गया है यहाँ से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, has its image coinciding with itself. What is the focal length? तो coincide करनी चाहिए यहाँ पर। तो क्या है, लाइट जो यहाँ से चलेगी वो आफ्टर स्ट्राइकिंग अगर पैरेलल होगी तो उसी कंडीशन में ही यहाँ पर लाइट रे रिवर्स करेगी और फिर से इसी पाथ के अलॉन्ग आकर यहाँ पर इमेज फॉर्म कर देगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइट रे जब पॉइंट ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर रखी हो या फोकस पर रखी हो, क्योंकि उसी सिचुएशन में जब लाइट चलेगी तो यहाँ से जाने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और जब लाइट रे इस मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो ये 90 डिग्री पर स्ट्राइक करेगी टू द प्लेन, बट नॉर्मली ये सॉरी नॉर्मल के डायरेक्शन में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है, तो इस सरफेस से रिट्रेस कर जाएगी और फाइनल इमेज उसी जगह बना देगी। तो आप कह सकते हैं कि फोकल लेंथ 20 होगा। तो इस केस में आपको डायग्राम बनाना है और लैंग्वेज के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर देना है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सिंगल मार्क्स में सकता है। अंडर व्हाट कंडीशन डज बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्ट एज प्लेन ग्लास शीट।
तो अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, वन इमर्जिंग लिक्विड, तो अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, तो उस सिचुएशन में ए म्यू जी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, इसका रेशियो 1 आएगा। और ये नोन है कि लेंस मेकर फॉर्मूले से 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये होता है रिलेटिव फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 टाइम्स 1 upon R1 minus 1 upon R2. So if you substitute this value here, then you will have 1 upon F is 0 or focal length is infinity. तो infinity तभी होती है जब plane glass plate का behave करे. So in this condition, when refractive index of medium and that of glass is same, so you will see no longer that lens because it will behave as plane glass plate. This is very important question for 1 or 2 marks. Calculate the speed of light in medium whose critical angle is this. And you have already read that what is relation between refractive index and critical angle. This is refractive index equals to 1 upon critical angle. Substitute here. Value of critical angle, that is 30 degree. Sin 30 is half, so it will be 2. And refractive index, in terms of absolute refractive index, its relation is C upon V, means speed of light in air upon speed of light in given medium. So speed of light in air is known, that is 3 into 10 per 8 meter per second. And to calculate V, shift on right side and V to here. The answer will be 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second. This will be the answer. Now come to last question of the class. In this last question, you have to draw a ray diagram for a refracting telescope, define its magnifying power and write the expression for it. ये नोन है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लार्जर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है और आईपीस स्मॉलर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स होता है। तो हमें इसमें रे डायग्राम दिखाने के लिए शो करना पड़ेगा कि लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, so लाइट is coming from infinity, so this is coming oblique parallel like this. लाइट एकदम जूम कर लेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर्स पास हो रही है और दूसरी लाइट रे एट सम एंगल बट पैरेलल टू ऑल अदर रेज। ठीक है, तो हम देखते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू वन पॉइंट फॉर्मिंग इमेज. दिस इमेज विल बी रियल, this image will be real and inverted. तो फर्स्ट इमेज फॉर्म here. तो अगर मैं जूम कर लें कि ये इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रखी थी लाइक ए बी, उस फर्स्ट इमेज फॉर्म्स इज ए डैश बी डैश. तो ये जो पहली इमेज बनेगी ये बनती है क्योंकि फोकस पर, तो ये जो गैप होगी इसको लिखेंगे हम एफ ओ, मीन्स फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव. नाउ you will shift this convex lens in such a way that this virtual object, क्योंकि ये इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी ना, ए डैश बी डैश आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी. तो अब कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपसे कौन सी रेडायग्राम पूछी गई है. अगर ये कहा गया है कि फाइनल इमेज शुड फॉर्म्स एन इंफिनिटी, तब तो हम इस पॉइंट पर एफ ई मार्क कर देंगे. दिस शुड बी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. ठीक है, एफ और एफ ई कॉन्साइड कर जाएंगे. अगर ये कहा गया लीस्ट डिस्टेंस पर इमेज बने तो हम इस एफ ई डैश को यहाँ के शिफ्ट कर देंगे. लेकिन अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट जो फाइनल इमेज है इन्फिनिटी बन रही है. तो इस केस में हम रेडायग्राम कैसे दिखाएंगे. फर्स्ट रेडायग्राम अगेन पास द फर्स्ट लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे इस तरह से और सेकंड लाइट लेंगे पैरेलल. ठीक है, हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, ऐसे ही है. क्योंकि अगर लाइट रे फोकस चल रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहीं पर मीट नहीं करे बट पैरेलल भी आएगी. ठीक है, इस तरह से हम इसका रेडायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं. एरो बनाना नहीं भूलेंगे, एरो मस्ट है हर सेक्शन में बनाना. ये अगर एरो नहीं बनाए तो इसको मास्क कर सकते हैं और नहीं लगा तो 0 मिल सकता है.
तो हम ये देख सकते हैं कि इस तरह से फाइनल में दोनों साइड इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, इधर भी और फॉरवर्ड डायरेक्शन भी। तो ये तब बनाएंगे जब हमें फाइनल में इन्फिनिटी पे बनानी हो। अगर लीस्ट डिस्टेंस बनानी है तो ये हमें पीछे की तरफ कहीं कट करनी पड़ेगी। कुछ हमें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, जैसे कि अगर ये हमने ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट ली होती तो इसको डॉट के पीछे बढ़ाते, और सपोज हमें यहाँ इमेज यहाँ बनानी है और ये पैरेलल लाइन है तो डॉट लाइन को टच करके फिर आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो इस तरह से बनती बैक साइड में, शायद आपको याद भी होगा क्योंकि अब तक पढ़ चुके होंगे एक बार। तो अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, पूछा गया मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन। तो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन फॉर्मूले से ही करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। विजुअल एंगल इज द एंगल फॉर्म बाय इमेज और ऑब्जेक्ट टू आवर आई। तो ये हम लोग की डेफिनेशन आएगी और साथ में इसका फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा। और in case of final image forms at infinity, its magnifying power is minus f upon fe. Fo is the focal length of objective and fe is the focal length of eye. So these were the question, very important question for board purpose. And if you have liked this video, please like it, subscribe it and share. And finally, I will say all the best for your exam. Thank you.